بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا خلاصۃ النحو کے اسباق کا سلسلہ چل رہا تھا، اور ہم نے کل واحد، تثنیہ اور جمع کا جو سبق ہے وہ شروع کیا تھا۔ ہم نے ان کی تعریف پڑھی۔ جمع کی دو قسمیں تھی، جمع مقصر اور جمع سالم۔ پھر جمع سالم کی دو قسمیں بنی، جمع مذکر سالم، پھر جمع مؤنث سالم۔ پھر تعداد کے لحاظ سے جمع کی دو قسمیں پڑھی، جمع کثرت اور جمع قلت۔ آج آگے اس کو کنٹینیو کریں گے، قواعد اور فوائد کے تحت کچھ اصول اور قواعد بیان کر رہے ہیں جمع کے اور تثنیہ کے بنانے کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں واحد اسم کے آخر میں آنے یا آئینے لگا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ واحد اسم ہوگا، اس کے آخر میں آن لگائیں گے یا پھر عین لگائیں گے، یعنی یا یہ جو لکھا ہوا ہے اس طرح لگانے سے وہ تسنیہ بن جائے گی، جیسے مسلمون سے مسلمانی یا پھر مسلمینی۔ ٹھیک ہو جی گیا۔ جی دوسرا قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ واحد اسم کے آخر میں اون یا نین لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ جمع مذکر سالم کیسے بنتا ہے؟ آخر میں اون یا پھر این لگانے سے۔ ہاں، مسلمون، مسلمین۔ ٹھیک ہے، یا ما قبل مقصور ہو اور نون مفتوح ہو، اس طرح مسلمون سے بن گیا مسلمون یا پھر مسلمین۔ یہ ہو گیا جمع مذکر سالم۔ یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں گزشتہ سبق کے اندر کہ واحد اسم کے آخر میں آتن، آتن لگا دینے سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے۔ جیسے مسلمتن کا مطلب ہوتا ہے ایک مسلمان عورت، پھر جمع اس کی بن گئی مسلماتن یا پھر مسلماتن۔ تو یہ اس کی اعراب والی جو حالت ہے وہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، تو یہاں صرف اس کی بناوٹ کا طریقہ سمجھیے کہ آتن اور یا پھر آتن لگا دینے سے یہ جمع مؤنث سالم بنے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تسنیہ، جمع جی مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ معلوم ہو گیا؟ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ آگے جمع قلت اور جمع کثرت کے اوزان، وزن بیان فرماتے ہیں کہ جو جمع قلت ہوگی وہ انہی وزنوں پر آئے گی۔ فرماتے ہیں جمع قلت کے درج ذیل سے اوزان ہے۔ جمع قلت کس کو کہتے ہیں؟ جمع قلت جس میں وہ 3 سے 11 لوگ تک ہو، 10، 11 لوگ 3 سے یا 10 لوگ؟ 10 ہاں، 10 تک جس کے اندر 3 سے لے کر 10 تک افراد مراد ہوں اس کو جمع قلت کہتے ہیں۔ جمع کثرت 11 یا 11 سے زیادہ کو جمع کثرت کہتے آواز دب رہی ہے حضرت تھوڑی۔ ہیں۔ جی، جمع قلت کے 6 اوزان ہیں۔ اب صحیح آواز؟ فرماتے ہیں جمع قلت کے 6 اوزان ہیں۔ پہلا وزن ہے افعال، بر وزن اقلام۔ ٹھیک ہے، وزن ہے افعال اور اقلام، یہ اس وزن پر لفظ ہے۔ اقلام کا کیا مطلب ہے؟ کل بھی آیا تھا یہ لفظ۔ بہت ساری قلم حضرت، لیکن آواز پھر واپس دب رہی ہے۔ جی، ہو سکتا ہے نیٹ کا مسئلہ ہو آپ کی طرف یا ہماری طرف، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ دوسرا وزن ہے فعلتن، فا عین لام تا، فعلتن بر وزن گلمتن۔ گلمتن کا مطلب ہوتا ہے خادم، گلمان جیسے آتا ہے نا، خادم، جی غلام۔ جی، یہ مراد ہے۔ تیسرا وزن ہے افعول، بر وزن انفسن، انفس۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جانیں، نفس۔ ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا جی وزن ہے افعلتن، بر وزن السنتن۔ السنتن کا کیا مطلب ہے؟ لسان کی جمع ہے۔
अच्छा, बहुत सारी जबान है। बहुत सारी जबानें। एक तो जबान जो बोली जाती है वो, और दूसरी जबान वो होती है जिससे, जो मुंह के अंदर होती है। तो लिसान से मुराद जो मुंह के अंदर जबान है वो मुराद, वो वाली मुराद नहीं, जबान जो बोली जाती है, जैसे अरबी जबान है या वो दूसरी जबान है, तो वो वाली जबान मुराद नहीं। ठीक हो गया। अफ़आलुन, फ़िअलतुन, अभी अफ़उलुन, हम्म, अफ़इलतुन, ये चार वजन है जमा किल्लत के, और दो वजन तो मशहूर है, मुस्लिमून और मुस्लिमातुन। जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुज़क्कर सालिम के जो दो वजन हैं, ये भी क्या है, जमा किल्लत के ही वजन हैं। अभी औजान के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। हाँ, वजन के मुतालिक आपने सर के अंदर नहीं पढ़ा। जी, कुछ नहीं पढ़ा। तरफ के अंदर आएगा आपको, इंशाल्लाह पढ़ेंगे वहां पर। वजन, ये जो है ना, हरूफ असलिया निकालने तकरीबन चौथा या पांचवा सबक है वजनों का, तरफ के अंदर। अभी आप कौन सा सबक पढ़ रहे हैं वहाँ अभी वहां पे 4 सब्जेक्ट पूरे हुए, 5वां चालू है। कल आवाज नहीं आई तो इन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी है। पर? अच्छा, सही सही। ये आवाज का बहुत प्रॉब्लम है, आवाज कट कर आती है, नहीं आती है। जी जी, तो रिकॉर्डिंग के अंदर उसको कवर कर लिया करें। जी जी जी, इंशाल्लाह ठीक है। तो ये औजान का सबक आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे दो तीन सबकों के बाद, वरना उस्ताद साहब को अर्ज कीजिएगा कि ये भी हमें सबक समझा दें। तो इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। तो ये वजन आप याद कीजिएगा, अफ़आलुन, फ़िअलतुन, अफ़उलुन, अफ़इलतुन, चार वजन ये हैं, और बाकी तो इन्हीं वजनों पर आप दूसरे कलिमात लाएंगे। अकलामुन, गिलमतुन, अनफुसुन, अलसिनतुन, मुस्लिमून और मुस्लिमातुन। जी ठीक है। जी। जमा कसरत के बयान फरमाते हैं, जमा कसरत के कई औजान हैं जिनमें से बाज ये हैं। जमा कसरत के सिर्फ यही वजन नहीं है, इनके अलावा कोई और वजन भी है, और जो जमा किल्लत के थे, जमा किल्लत के छह ही वजन है, इनके अलावा जी कोई भी वजन जमा किल्लत का नहीं है। जी। ठीक हो गया। आगे जमा कसरत के औजान बयान फरमाते हैं। अफ़इलाउ, अस्दिकाउ, अस्दिकाउ कहते हैं अच्छे को दोस्तों को। दोस्त। फ़ुउलुन, बर वजन, मुदुनुन, इनके बाज माना में इंशाअल्लाह ताला आपको अर्ज करता हूँ। बाज के माना में अर्ज करता हूँ, बाज के बाद में अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। फ़ुउलुन, जी बर वजन, मुदुनुन। फ़िअलुन, बर वजन, फ़िरकुन। फ़िरक का मतलब है गिरोह, बहुत सारे गिरोह। फिरका जिसे अच्छा। कहते हैं ना, फिरक के बातिला। जी बरारतुन, बर वजन, फ़अलतुन। फ़ुऊलुन, बर वजन, क़ुलूबुन। क़ुलूब किसे कहते हैं? दिल को, कल्ब। दिलों को। इसकी जी वाहिद क्या है? कल्ब। कल्ब। ठीक हो गया। और फ़िअलानुन, बर वजन, जीरानुन। जीरान का मतलब है पड़ोसी। अच्छा। फ़अला, बर वजन, क़त्ला। कत्ला, ये बोलते हैं कत्ल होने वाले, मकतूल, बहुत सारे मकतूल। फ़आलिलु, फ़आलिलु, बर वजन, दराहिमु, बहुत सारे बहुत दिरहम। सारे दिन। जी। हम्म, और मफ़ाइलु, बर वजन, मसाजिदु, बहुत सारी मस्जिद। बहुत सारी मस्जिदें। तो ये हो गया। आगे बयान फरमाते हैं, जो इस्म जमा न हो मगर जमा का माना दे, उसे इसमें जमा कहते हैं। जो इस्म जमा ना हो लेकिन जमा का माना दे, तो उसे जमा, इसमें जमा कहते हैं। जैसे रहतुन, कौम, राहत यानी एक कौम लोगों की,
लोगों का, जिसे गिरोह कह लें। रात भी ये गिरोह को कहते हैं, ग्रुप। और कौमुन का मतलब है कौम है। लफ्ज तो मुफरद है, लेकिन इसके अंदर जो माना है वो जमा वाली। इसी तरह आप फौज की मिसाल ले लें, फौज। तो फौज है तो मुफरद है, लेकिन माना जो दे रही है वो जमा की दे रही है। जी ठीक हो गया, जो इसम मुफरद हो लेकिन जो इसम जमा ना हो लेकिन जमा की माना दे, उसे इसमें जमा कहते हैं। जी। मुदुनुन, ये जो लफ्ज है मुदुनुन का मतलब है बहुत सारे शहर। ये मदीनतुन की जमा है। मेरे जहन में था लेकिन मैंने कहा कि कंफर्म करके आपको अर्ज करें। मुदुनुन अच्छा। ये जमा है, बर वजन फ़ुउलुन। मदीनतुन की जमा है। इसका शहर की क्या जगह मदीना। बनेगी? शहर की जमा है। बहुत सारे शहर। और बाकी जो बारह है तो इसका भी मैं कंफर्म करके आपको अर्ज करता हूँ, बारह। मंजिल देखना आपको आती है? नहीं हजरत। मैंने रिकॉर्डिंग की है मुंजिद के इस्तेमाल के हवाले से, वो इंशाल्लाह ताला वो भी जब भेज तक वो असल में जब तक मस्दर ही नहीं पता होंगे तो फिर कैसे देखेंगे। दूँ। जी जी इंशाल्लाह। वजन नहीं पता होंगे, असल लफ्ज निकालना नहीं आएगा, तो कैसे देखेंगे। जी जी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। सारी चीजें एक साथ नहीं आती, आप कोशिश करते रहेंगे तो आती जाएगी। जी इंशाल्लाह। तो मुंजद एप्लीकेशन बहुत सारी मौजूद हैं प्ले स्टोर पर। आप वहाँ से जो है वो अल मुंजद डाउनलोड कर लें, या फिर अल कामुसल वहीद है वो डाउनलोड कर लें। तो उनके अंदर फिर अल्फाज लिखे होते हैं। सबसे पहले तो वज़न मालूम करना होता है। तो वज़न जैसे आप वज़न वाला सबक भी नहीं पढ़ा ना आपने, तो वज़न पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको वज़न का तरीका आ जाएगा। फिर जैसे वज़न का तरीका आएगा तो फिर उसके जो हरूफ असलिया होंगे, उस हरूफ जी असलिया के एतबार से फिर आप जो है वो कोई भी लफ्ज़ की माना आप डिक्शनरी से आसानी से निकाल सकते। जैसे अब बरारतुन जी की मैंने माना मुंज से निकाल ली आपसे बात करते करते हुए। तो बरारा का मतलब होता है जो है वो बर्र या बिर्र, नेक होना। जैसे इसकी अबरार भी आती है। अबरार का मतलब क्या होता है? नेकोकार। अबरा। ठीक है। तो अच्छा। बरारतुन यानी बहुत सारे नेकोकार। बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ये मानी है। तो आज के लिए इतना सबक काफ़ी है। आज के सबक के हवाले से कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। बस ये है तो वजन औजान नहीं पड़े हैं, बस वो है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। चलें मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम है।